بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. پچھلے درسوں میں طہارت سے متعلق بات چیت ہو رہی تھی. اس سے پہلے کہ آج کا درس شروع کیا جائے، گزشتہ درس کی کچھ باتوں کا مراجعہ ہونا چاہیے. میں نے پچھلا درس تیمم کے متعلق تھا. اب یہ بتایا تھا کہ چند حالات میں تیمم کرنا مباح ہے. تو حالات میں سے ایک حالت یہ تھی کہ اگر آدمی کو حد سے اکبر یا حد سے اصغر لاحق ہو جائے، یعنی جس سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے اور ڈھونڈنے کے باوجود بھی پانی نہ ملے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. فلم تیمم فتیمم صعیدا طیبا، تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو. اس کے علاوہ اور 5-6 صورتیں میں نے بیان کی تھی کہ جس میں یہ تھا کہ آدمی کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. کوئی جو ان صورتوں کو دہرائے؟ کوئی نہیں؟ ہاں بتاؤ. ہاں، اور اس کے جو میں صورت بتایا ہوں اس کے علاوہ اور کون سی صورت ہے اس میں تیمم کرنا مباح ہوتا ہے؟ چلو ایک صورت میں بتا دے رہا ہوں. نہیں، وہ تو تیمم نہیں، تو پٹی سے مسا کرنا ہو جائے گا. ایک صورت یہ میں بتایا تھا. ہاں تو میں بتا دوں. اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہو اور نہانے سے تکلیف ہو جائے، یعنی پانی بہت مخصوص مقدار میں ہے اور اس کو کھانے پکانے کے لیے پینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر اس سے طہارت حاصل کر لے گا تو پینے کے لیے خواہ انسان کے لیے یا جانور کے پینے کے لیے پانی نہ باقی بچے. ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے. ایک صورت اور میں بتایا تھا کہ پانی موجود ہے لیکن اس کے بیمار ہونے کا ڈر ہو یا بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہو یا شفا میں تاخیر ہونے کا ڈر ہو، ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ایک صورت اور میں بتایا تھا کہ بیمار پڑ جاتے ہیں، ہاں، کہ آدمی بیمار مطلب کہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی وضو کرانے والا خود وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہ وضو نہیں کر سکتا. پانی موجود ہے لیکن خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی اس کا مدد کرنے والا بھی نہیں اور وقت بہت تنگ رہ گیا ہے، انتظار نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم اپنی جگہ پہ تیمم کر لے گا. ایک صورت اور بتایا تھا کہ آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور سخت ٹھنڈی پڑ رہی ہے، اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ اس کو غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا. ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ایک صورت اور میں بتایا تھا کہ پانی قریب میں ہے لیکن اس کو ڈر ہے کہ اگر پانی کو لینے کے لیے تلاش کرنے کے لیے جائے گا تو ساتھی جو ہیں اس سے بچھڑ جائیں گے، یا یہ کہ اس کو جان مال عزت آبرو کا خطرہ ہے، وہاں جائے گا تو اس کی جان مال عزت کو مطلب، یا یہ کہ پانی اس کے درمیان کوئی دشمن حائل ہے، جانور ہو یا انسان ہو، ہاں خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. یا یہ کہ اس کے پاس قریب پہ پانی ہے لیکن نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کنواں ہے، ڈول نہیں ہے، بالٹی نہیں ہے، رسی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ایک صورت اور میں بتایا تھا کہ پانی موجود ہے لیکن وقت اتنا کم ہے کہ وہ اگر وضو کرنے میں لگ جائے گا تو وہ وقت نکل جائے گا. تو ان تمام صورتوں میں نے بتایا تھا کہ تیمم کر سکتے ہیں. چونکہ پچھلے تمام درسوں میں پانی کی بحث آئی تھی کہ تیمم یا طہارت جو ہے وضو غسل یہ پانی سے ہوتا ہے. تو آج کا درس یہ پانی سے متعلق ہے کہ پانی کی کتنے قسمیں ہیں، کون سا پانی پاک ہوتا ہے، کون سا پانی ناپاک ہوتا ہے، کن پانی کو استعمال سے آدمی پاک ہوگا، کن پانی کو استعمال سے پاک نہیں ہوگا، کون سا پانی کھانے میں استعمال کر سکتا ہے، کون سا پانی طہارت میں استعمال کر سکتا ہے. تو اس پہ آج کا درس اسی پہ مبنی ہے. پانی کی 4 قسمیں ہیں. ایک تو ہے مطلق پانی، یعنی جس پر پانی کا اطلاق ہو، پانی کے حکم سے وہ نہ نکلے، مطلق پانی. اور اس میں کئی قسم کے پانی داخل ہیں. اس میں
पानी, बारिश का पानी, ओले और बर्फ का पानी, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, कि हमने आसमान से पाक पानी नाज़िल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ख़तायाया बिल-माई वस-सल्जी वल-बर्द, कि अल्लाह तू मेरे गुनाहों को पानी से, ओले से और बर्फ से धुल दे। मालूम ये हुआ कि पानी, ओला, बर्फ ये पाकी का जरिया है, तभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की थी। इसी तरह मुतलक पानी में समुद्र का पानी भी दाखिल है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से समुद्र के बारे में पूछा गया तो आपने कहा हुवा तहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु, कि उसका पानी पाक है। तहूर के माने होता है जो बताते खुद पाक हो और दूसरे के लिए पाकी का जरिया हो। साहब एक वाक़या है इसके बारे में कि साहब किराम ने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल हम लोग समुद्र में सफ़र करते हैं और थोड़ा सा पानी अपने साथ रखते हैं, अगर उन पानी से हम वज़ू कर लें, गुस्ल कर लें तो पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, तो क्या हम समुद्र के पानी से वज़ू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं? वे समझते थे कि समुद्र में मुर्दे पड़े रहते हैं, क्या क्या पड़ा रहता है, पता नहीं पानी पाक है कि नापाक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुवा तहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु, कि उसका पानी तहूर है, यानी बजाते खुद भी पाक है और दूसरी चीज़ों के लिए पाकी का जरिया भी है। वल हिल्लु मैततुहु, और उसके मुर्दे पाक हैं। अगर समंदर में कोई मछली मरी हुई पड़ी हुई है तो आप उसको बेशक खा सकते हैं। कोई समंदर अपना मुर्दा वो पानी जो है वो समंदर जो है किसी मछली को फेंक दिया और मछली सड़ करके बाहर आके लग गई, आप उसको तबीयत से आ रही तो आप उसको खा सकते हैं। इसी तरह से एक कोई दो हुआ, एक तो बारिश का पानी, ओले और बर्फ का पानी, दूसरा समुद्र का पानी, तीसरा ये कि इसी माए मुतलक में ही जमजम का पानी दाखिल है। माए मुतलक में ही जमजम का पानी है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम का एक डोल मंगवाया और आपने उससे पानी किया और आपने उससे वज़ू भी किया, तो मालूम हुआ कि जमजम का पानी भी उसी माए मुतलक में दाखिल। इसी तरह से कोई ऐसा पानी है जो ज़्यादा ठहरने की वजह से या ऐसी चीज़ों के पड़ने की वजह से उसका रंग, बू, मज़ा बदल जाए जो जिससे बचना मुमकिन ना हो, जैसे पत्ते गिर गए हैं किसी पानी में, पत्ते की वजह से उसका रंग बदल गया है, मिट्टी की वजह से उसका रंग बदल गया है, ज़्यादा ठहरने की वजह से जैसे कुआं है, चश्मा है, नहर है, हौज का पानी है, तो उसको भी माए मुतलक यानी पानी का लफ्ज़ उससे भी मतलब इतलाफ होगा, तो वो भी पानी पाक है। इसलिए कि असल चीज़ तहारत है जब तक कि नजाकत की कोई दलील ना हो, और उसके नजाकत की कोई दलील नहीं है। तो पहले पानी की पहले किस्म है माए मुतलक, यानी ऐसा पानी जिसपे पानी का इतलाफ हो, लोग पानी कहते हों। दूसरी सूरत पानी की ये है कि जिसमें कोई पाक चीज़ मिली हुई हो और उसका रंग, बू, मज़ा बदल गया हो। मिसाल के तौर पे जैसे सिरका मिल गया किसी पानी में, या ये कि साबुन मिल गया किसी पानी में, चाय मिल गई किसी पानी में, थोड़ी सी दूध मिल गया किसी पानी में, तो ये देखा जाएगा कि अगर उसको पानी कहते हों, उसका नाम पानी हो, कि पानी है, यानी थोड़ी सी मिली हुई है, पानी है उसका नाम, तो ठीक है, उसको आप वो ताहिर है, मुताहिर है, यानी खुद भी पाक है और दूसरी चीज़ के तहारत का भी जरिया है। लेकिन अगर पानी का लफ्ज़ से निकल गया, पानी नहीं बोलते, मिसाल उसको चाय इतनी बनी उसको चाय कहने लगे आप, दूध मिल गया आपको दूध कहने लगे, तो बताते खुद तो वो पाक है, लेकिन दूसरी चीज़ के लिए तहारत का जरिया नहीं है। मतलब ये है कि आप उसको आदात में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इबादात में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वज़ू के लिए, गुस्ल के लिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कोई चीज़ किसी पानी में कोई पाकीज़ा चीज़, पाक चीज़ मिली हुई है, उसका रंग, वो मज़ा बदल गया हो, अगर उस पर पानी का इतलाफ हो रहा है, थोड़ा सा बदला हुआ है, पानी का इतलाफ हो रहा है, नमक मिल गया है थोड़ा सा, पानी मतलब मज़ा उसका बदल गया है, लेकिन पानी कह रहे हैं उसको, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दलील ये है कि
हज़रत उम्मे अतिया कहती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो पानी और बैरी के पत्ते से मिले हुए थे उनको 3 बार या 5 बार गुस्ल दो और आखिर में काफूर मिला देना। तो काफूर के थोड़ा सा हिस्सा उसमें मिलाया गया था, यानी उसको पानी कहा जाता था, इसलिए उससे उसका इस्तेमाल करना जायज़ हुआ। एक और रवायत में उम्मे हानी कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमूना ने ऐसे पानी से गुस्ल किया जिसमें आटे का असर था, थोड़ा सा आटा नज़र आ रहा था, तो गोया कि उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इस्तेमाल लगा हुआ है, रंग वो मज़ा बदल गया है, तो आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है माए मुस्तामल। आप अक्सर सुनते होंगे माए मुस्तामल। माए मुस्तामल की 2 किस्में हैं। एक तो ये कि आदमी के वज़ू करने से या गुस्ल करने से जो आदमी के जिस्म से पानी जुदा होता है, आप वज़ू कर रहे हैं, अब नीचे कोई बर्तन रखे हुए हैं, उस बर्तन में आपके वज़ू का पानी गिर रहा है, एक तो इसको या ऐसे आप गुस्ल कर रहे हैं और गुस्ल करने के बाद पानी आपके जिस्म से जुदा होकर किसी एक जगह जमा हो रहा है, इसको माए मुस्तामल कहते हैं। दूसरा माए मुस्तामल कहते हैं कि आपने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद पानी बच गया, आपका जो बर्तन में पानी रखे हुए थे आपने गुस्ल किया उसमें से और पानी बच गया, उसको भी माए मुस्तामल कहते हैं। दोनों पानी का हुक्म ये है कि ये ताहिर भी है मुताहिर भी है, यानी पदार्थ से खुद भी पाक है और उससे तहारत भी हासिल कर सकते हैं। हज़रत रबी बिन्त मुअव्विज़ अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आपने अपने हाथ के बचे हुए पानी से अपने सर का मसाह किया, मालूम हुआ कि उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरी रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे रास्ते में मुलाकात हुई, मदीने के एक रास्ते में मेरी मुलाकात हुई, मैं चुपके से खिसक लिया, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, मैं चुपके से खिसक लिया और जा करके मैं घर से गुस्ल करके और वापस आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कहाँ निकल गए थे, कहाँ चले गए थे? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं जुनबी हालत में था, जनाबत की नापाकिया की हालत में था और मुझको अच्छा नहीं लगा कि उस हालत में आपके साथ बैठ करके बात करूं। तो आपने कहा कि इन्नल मोमिना ला यंजुस, कि मोमिन जो है नजिस नहीं होता। माना क्या हुआ, मतलब इससे इस्तेदलाल कैसे करेंगे? जब मोमिन नजिस नहीं होता, पाक होता है, तो पानी के उससे मिलने की वजह से, उसके जिस्म से छूने की वजह से वो पानी नजिस कैसे होगा? क्योंकि एक ताहिर चीज़ पानी दूसरे ताहिर चीज़ मोमिन के जिस्म से ही मिली हुई है, तो ताहिर चीज़ के मिलने से उससे कैसे असर पड़ेगा? मालूम ये हुआ कि अगर पानी किसी आदमी के जिस्म से लगा हुआ हो, वज़ू किया हो, उससे गुस्ल किया हो, तो वो पानी पाक होगा और दूसरी चीज़ के लिए पाकी का बाइस होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने देखा कि एक लगन में पानी जमा है, उससे आपने वज़ू या गुस्ल करना चाहा और उसी से हज़रत उम्मे सलमा ने गुस्ल किया था, उस पानी से उम्मे सलमा ने गुस्ल किया था और पानी बाकी बचा था, उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करना चाह रहे थे या वज़ू करना चाहते थे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, इससे मैंने गुस्ल किया है और मैं जनाबत की हालत में थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल माअ ला यंजुस, कि पानी नजिस नहीं होता, तुम्हारे जिसके छूने की वजह से पानी नजिस नहीं हुआ। मालूम ये हुआ कि माए मुस्तामल ये ताहिर है मुताहिर है, इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी किस्म है माए नजिस, नापाक पानी। उसकी सूरत यह है कि किसी पानी में कोई गंदगी नजाकत मिल गई हो, उसका रंग बू मज़ा बदल गया हो, तो बिल इत्तिफाक वो पानी नजिस होगा, उससे तहारत हासिल नहीं कर सकते, ना तहारत हासिल कर सकते हैं ना और कोई काम, मतलब जैसे पानी पीने वगैरह में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 किस्म पानी की, माए मुतलक, दूसरा जिसमें कोई पाक मिला हुआ हो और उसका रंग वो मज़ा बदल गया हो, और तीसरा माए मुस्तामल, चौथा माए नजीस।
हमारे अब अगर कोई पानी ऐसा है कि जिसमें नजाकत मिली है लेकिन उसका रंग वो मज़ा नहीं बदला है, तो ऐसे पानी के बारे में इख्तलाफ है। इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर पानी कसीर है यानी ज़्यादा पानी है और उसमें कोई नजाकत थोड़ी पड़ गई है, उसका रंग वो मज़ा नहीं बदला है, तो वह पानी पाक होगा। लेकिन पानी अगर थोड़ा है तो वो पानी नापाक हो जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते नहीं, अगर पानी थोड़ा हो या ज़्यादा हो, अगर नजाकत पड़ी है और उससे उसका रंग वो मज़ा नहीं बदला है तो वो पानी पाक होगा। समझे कि नहीं? यानी इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं माए कसीर हो, ज़्यादा पानी हो, अगर उसमें पड़ जाए कोई नजाकत और उससे उसका रंग वो मज़ा ना बदले तो वो पानी पाक होगा। और अगर थोड़ा पानी है और उसमें कोई नजाकत गिर गई तो वो मिसाल के तौर पर एक बाल्टी पानी है, उसमें कोई कतरा जैसा गिर गया तो इमाम मालिक के नज़दीक वो पानी पाक होगा, उससे वजू कर सकते हैं। इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके नज़दीक है कि नहीं, वो पानी पाक नहीं होगा, उससे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुहक्किकीन उलमा जो है वो इमाम मालिक के ही कौल को तरजीह देते हैं और कहते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई सही दलील नहीं है। और फिर उन दोनों में भी इख्तलाफ है कि माए कसीर किसको कहेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर 10 फीट लंबा गहरा चौड़ा अगर है, 10 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा, 10 हाथ गहरा अगर पानी है तो उसको माए कसीर कहेंगे। उसके कम है तो माए कसीर थोड़ा पानी कहेंगे। और इमाम अबू शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे दो कुल्ला, दो बड़ा घड़ा पानी अगर है तो उसको माए कसीर यानी उसको ज़्यादा पानी कहेंगे। लेकिन उलमाए कराम, मुहक्किक उलमाए कराम कहते हैं कि इस सिलसिले में इमाम मालिक की दलील ज़्यादा कवी है और दूसरे लोगों ने जो इस्तेदलाल किया है उनकी रवायत सही नहीं है। एक हदीस में आता है सहाबे कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उससे पूछा बीरे बुज़ा, एक कुआं था मदीने में बीरे बुज़ा, उसके बारे में सहाबे कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या हम बीरे बुज़ा से वज़ू कर सकते हैं? उसमें कुत्ते का गोश्त, हैज के कपड़े और गंदगी वगैरह डाली जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका पानी पाक है। यानी मालूम ये हुआ कि अगर रंग बू मज़ा ना बदले, दूसरी रवायत में है कि अगर पानी का रंग बू मज़ा ना बदले नजाकत की वजह से तो वो पानी पाक होगा। मालूम ये हुआ कि अगर नजाकत की वजह से रंग बू मज़ा बदल जाएगा तो पानी नापाक हो जाएगा। पूरे खुलासा ये है कि कुछ पानी ऐसा होता है कि जिसको आदात और इबादत सब में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माए मुसलफ मैंने कहा था, या ऐसा पानी कि जिसमें कोई ऐसी पाक चीज़ मिली हुई हो, मिट्टी है, नमक है, जिससे बचना मुमकिन ना हो, नमक है या पत्ता वगैरह है, उससे आप उसको आप इस्तेमाल करेंगे। यानी उससे आदात और इबादत पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और वज़ू भी कर सकते हैं। कुछ पानी ऐसा होता है कि जिसको आदात में इस्तेमाल कर सकते हैं, इबादत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो ऐसा पानी कि जिसमें पाक चीज़ मिली हुई हो और उसका रंग व मज़ा बदल जाए, जैसे चाय, दूध वगैरह मिल गया है तो उसको आदात में पीने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इबादत में यानी वज़ू वगैरह में उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पानी ऐसा है कि जिसको इबादत में इस्तेमाल कर सकते हैं, आदात में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही में जिसका कोई नजाकत पड़ जाए, पानी में नजाकत पड़ जाए, उसका रंग बू मज़ा ना बदले तो उसको आप इबादत में इस्तेमाल कर सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं, लेकिन और खाने पीने वगैरह में उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कुछ पानी ऐसा है कि जिसको ना आदात में इस्तेमाल कर सकते हैं ना इबादत में इस्तेमाल कर सकते हैं, वही जिसमें नजाकत की वजह से उसका रंग बू मज़ा बदल जाए। समझे कि नहीं? कोई सवाल, कोई इश्काल इसके बारे में? इसमें जो दरिया का पानी या नहर का पानी वो भी माए मतलब उसको पानी कहा जाएगा, समंदर के साथ वो भी। हाँ, वो समुद्र के साथ। अच्छा, एक ऐसी नदी हो जिसमें ड्रेन का पानी गिरता हो और वो पानी बिल्कुल काला दिखता हो, किसका पानी? नदी का पानी, हाँ, और उसमें नाले का पानी जाके गिरता हो उस नदी में, हाँ। और वो नदी का पानी बिल्कुल काला हो गया हो, बह रहा है और पूरा पानी बह रहा हो लेकिन काला है, बिल्कुल पानी काला है। खाली रंग की वजह से, कोई बात नहीं। अगर नजाकत की वजह से वो गिर रहा है कि वो रंग जो बदला है किसकी वजह से बदला है? फैक्ट्रियों के उसमें कचरे आ रहे हैं, शहरों के उसमें कचरे गिर रहे हैं उस नदी में, बड़ी नदी है, अपने इंडिया में यमुना नदी है, वो उसका पानी बिल्कुल काला है। पाक है, पाक माना जाएगा वो।
अब इसके बाद मैसा यानी नजासत की किस्म, नजासत का भी जिक्र आया बार बार, नजासत किसको कहते हैं, नजासत पड़ गई, नजासत किसको कहते हैं। तो सवाल है कि नजासत किसको कहते हैं। नजासत कहते हैं कि ऐसी चीज़ जिससे बचना वाजिब हो और अगर किसी के जिस्म पर लग जाए तो उसको धुलना वाजिब हो, उसको कहते हैं नजासत। इसकी कई किस्में हैं। एक तो ये मुर्दार, मुर्दार कहते हैं, मैता जिसको कहते हैं मुर्दार, कोई ऐसी चीज़, ऐसा जानवर जो बग़ैर शरई ज़बाह किए हुए मर गया हो, दम घुटने से मर गया हो या उसको इतना मारा गया हो कि वो मर गया हो, किसी ऊपर के से गिरने की वजह से वो मर गया हो, तो उसको कहेंगे मुर्दार। ऐसा मुर्दार ये नजिस है। इसी तरह से किसी जिंदा जानवर का गोश्त अगर काट लिया जाए, जानवर जिंदा है उसका गोश्त काट लिया गया, तो वो भी मुर्दार के हुक्म में होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा कुतिआ मिनल बहीमति वहिय हय्यतुन फहुव मय्यत, कि जिंदा जानवर से जो टुकड़ा काटा जाएगा तो उसको मुर्दार समझा जाए, टुकड़े को मुर्दार समझा जाए, यानी वो भी नजिस के हुक्म में है। समझे कि नहीं। खुश्की के जितने जानवर हैं अगर वो मर जाएं तो वो इसी हुक्म में आएंगे, बजाय बस कुछ चंद जानवर उससे मुस्तस्ना हैं। मिसाल के तौर पर इन्हीं मुर्दार में से 2 मुर्दे हदीस में हलाल किए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे लिए 2 मुर्दे हलाल हैं। कौन कौन मुर्दे? मछली और टिड्डी। वहिल्लत लना मैततान वद्दमान, कि 2 मुर्दे। टिड्डी नहीं समझते हो? इतना बड़ा सा होता है, कभी कभी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, खेतों वगैरह में नुकसान करते हैं खेतों को। हाँ, उसको खा सकते हैं। हाँ, वो हलाल है, यानी उसको जिंदा मुर्दा कैसे भी आप खा सकते हो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा उहिल्लत लना मैततान, कि हमारे लिए 2 मुर्दे हलाल करार दिए गए हैं। एक तो मछली, उसको आपको ज़बह करने की जरूरत नहीं, और दूसरा ये टिड्डी और मैततान और दमान, और 2 किस्म के खून हलाल है, एक तिल्ली और दूसरा कलेजी, वो भी खून के किस्म से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमारे लिए हलाल है। तिल्ली कलेजी दूसरी कलेजी से मिला रहता है, पतला होता है। इसी तरह से ऐसे जानवर का मुर्दार जिसमें बहता हुआ खून ना हो। ऐसे कोई है जानवर आपके निगाह में जिसमें खून बहता हुआ नहीं रहता है? शिकार करते हैं, खून बह रहा है तो जिसमें खून ही ना हो, जैसे मक्खी है, शहद की मक्खी है, इस तरह के जो जानवर हैं। हाँ, क्या कहते हैं, चींटी है। मक्खी खून नहीं, हाँ, मक्खी में खून नहीं बहता हुआ हमारे कहाँ बचता है। हाँ, ठीक है, तो मछली की शक्ल में हो, मछली की कभी समुद्र की बात। हाँ, तो अगर कोई ऐसा जानवर है कि जिसमें बहता हुआ खून नहीं है तो उसका मुर्दार भी जायज़ है। आपके खाने में चूंटी, मक्खी, मकड़ी, शहद की मक्खी वगैरह पड़ जाए तो आपको उसको उसकी ज़रूरत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे खाने में मक्खी पड़ जाए तो उसको और डुबो दो, पूरा डुबो दो, फिर उसके बाद उसको निकाल के फेंक दो, इसलिए कि उसके एक पर में तो बीमारी है और दूसरे पर में शिफा है। इसी तरह से अगर जानवर का चमड़ा दबागत दे दिया जाए तो जानवर का चमड़ा भी पाक हो जाता है। दबागत के बाद जानवर का चमड़ा पाक हो जाएगा। इसी तरह से मुर्दा जानवर की हड्डी, उसका दांत, उसकी सींग, ये सारी चीज़ें भी पाक होती हैं। मुर्दा जानवर के हड्डी और सींग वगैरह भी पाक हैं। बुखारी में इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह नहीं, पाक खाने की बात नहीं, पाक मतलब जैसे लग गया किसी को, किसी पानी में गिर गया, किसी चीज़ में लग गया तो वो मतलब कोई नहीं हर चीज़ पाक नहीं खाने तो वो पाक मतलब यहाँ पाक मतलब ये खाने के वो हलाल और हराम की बात नहीं करती। मक्खी पानी में गिरे तो पानी पूरा फेंक देते हैं, नहीं, तो वो ऐसा नहीं कोई बात नहीं, मक्खी को पूरा मार देना चाहिए पानी और डुबो दो उसको पानी में, डुबो करके फिर उसको फेंक दो निकाल करके। और जैसे ये सब जैसे ककरोच वगैरह ये सब, हाँ, ककरोच वगैरह
जहरीला है तो उसका प्रोसिक्यूशन करना चाहिए। वो गंदगी में रहता है ना, वो आगे भी आएगा गंदगी की बात, कौन सी गंदगी क्या है। हाँ, अगर इंसान जो है, लेकिन मुसलमान इंसान, इसका मुर्दार ये पाक होता है। इंसान अगर मर गया तो जिंदा हालत में भी और मुर्दा हालत में भी वो पाक होता है, मोमिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु ताहिरुन हय्यन व मय्यितन, कि जिंदा हालत में भी मोमिन जो है पाक होता है और मुर्दा हालत में भी मोमिन पाक होता है। तो ये हुआ मुर्दार, पहला जो नजाकत से मुर्दार हुई। दूसरा खून, और खून से मुराद है यहाँ बहता हुआ खून, हाँ वो हैज का खून हो या जो ज़बह किया गया उसमें से जो खून निकले या निफास का खून हो। अइम्मे अरबा के नज़दीक और जमहूर उलमा के नज़दीक खून ये नापाक है, लेकिन इमाम इब्न हज़म, इमाम शौकानी और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हैज और निफास के अलावा बाकी तमाम खून पाक होता है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हैज और निफास के खून के अलावा और किसी खून की नजासत पर मुझे कोई दलील नहीं मिली। खून के नजासत के लिए कोई दलील नहीं है जिससे साबित हो कि खून अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नजीस हो जाता है, नापाक हो जाता है। अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खून सिर्फ हैज और निफास का खून ही खून जो नापाक होता है, बाकी खून अगर कपड़े पे लग जाए तो उसको धुलना जरूरी नहीं है, ये अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। उसके बाद सूअर और कुत्ते का गोश्त, ऐसे ही उसका जूठा, ये भी नापाक है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्ला अजिदु मा उहिया इलैया, कुल्ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहन औ लहमा खिंजीरिन फइन्नहु रिज्स। तो उससे रिज्स से मुराद है नापाक है, ये गोश्त के उसके सूअर के गोश्त को कहीं कहा गया है तो नापाक है। इसी तरह से कुत्ते के जूठे के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर किसी बर्तन में कुत्ते का जूठा मोटो कुत्ता मुँह डाल दे तो उसके पाकी के लिए ज़रूरी ये है कि उसको 7 बार पानी से धुलें और 1 बार कम से कम पहले या आखिर में उसको मिट्टी से धुलें। समझे कि नहीं? तो ये भी नजाकत की किस्म हुई, कुत्ते का गोश्त, सूअर का गोश्त और उसका जूठा, ये भी नजिस है। इसी तरह से गैर माकुलुल लहम, यानी जिसका गोश्त नहीं खाया जाता, ऐसा जानवर जिसका गोश्त नहीं खाया जाता, उसका पेशाब, उसका गोश्त और उसकी लीद, ये सारी चीज़ें भी नजिस हैं। गैर माकुलुल लहम का गोश्त, उसका पेशाब, उसकी लीद यानी पाखाना, ये नजिस है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार क़ज़ाए हाजत के लिए गए और मुझसे कहा कि तुम पत्थर ढूंढ लाओ, 3 पत्थर ढूंढ लाओ। मैं बहुत ढूंढा, मुझको 2 पत्थर मिला और एक गधे का लीद मिला। हाँ, मैं उसको लेके गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर ले लिया और गधे के लीद को फेंक दिया और कहा कि ये नापाक है। मालूम हुआ कि गधे का लीद जो है ये नापाक है। इसी तरह से नापाक की नजाकत में से जल्लाला, ऐसा जानवर जो गंदगी खाता हो, कोई भी जानवर, गाय हो, बकरी हो, ऊँट हो, अगर वो गंदगी खाती है, गंदगी खाने मतलब ये कि अक्सर तौर पर उसका अक्सर ग़िज़ा गंदगी है। अगर वो गंदगी खाती है तो उसका गोश्त, उसका दूध, उस पर सवारी बगैर आड़ के, बगैर मतलब किसी बिछाए हुए इससे सवारी, ये नाजायज़ है। हज़रत अमर बिन शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप, अपने दादा से रवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्लाला के दूध पीने से मना किया है। एक और रवायत में है तो उसकी सवारी से भी अल्लाह के रसूल ने मना किया। अब अगर कोई जानवर है जो गंदगी खाता है, उसको पकड़ कर और एक मुद्दत तक के उसको अलग जगह में बांध दिया गया और उसको पाक चारा खिलाया गया, तो ऐसी सूरत में उसका हुक्म बदल जाएगा। आप उसको खा सकते हैं, उस पर सवारी कर सकते हैं, उसका दूध पी सकते हैं। और उसका लीड वो पाक होगा ना, पाक होगा वो तो देखा जाएगा, मतलब माकुलुल लहम जानवर, गैर माकुलुल लहम जानवर। जब गाय है, घर पे जो गाय होती है, आ रहा है, बैठ आ रही है उसकी बैठ आ रही है, माकुलुल लहम की बैठ भी आ रही है। हाँ, माकुलुल लहम जानवर जो है, माकुलुल लहम
اس کا دودھ، اس کا لعاب، اس کا پیشاب، اس کی لیس، یہ سب پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلے عقل کے کچھ لوگ آئے اسلام لانے کے غرض سے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اسلام لے آئے، لیکن ان کو مدینے کی آب و ہوا رات نہیں آئی، یعنی بیمار پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ تم جہاں پہ صدقے کے اونٹ ہیں وہیں پہ جاؤ، ان کے دودھ اور ان کے پیشاب پیو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ تم ان کے دودھ اور ان کے پیشاب پیو۔ وہ لوگ جا کر کے اس کا پیشاب اور ان کے دودھ پیے اور وہ تندرست ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ ان کا پیشاب وغیرہ یہ پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے اونٹنی کا لعاب جو تھا میرے اوپر گر رہا تھا، تو اس کا لعاب بھی، یہ ساری چیزیں پاک ہیں۔ اسی طرح سے انسان کا پسینہ اور اس کا لعاب یہ ساری چیز بھی پاک ہے۔ انسان کا پسینہ وغیرہ پاک ہوتا ہے، خواہ وہ مشرک کیوں نہ ہو، خواہ وہ حائضہ عورت کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں برتن سے پانی پیتی تھی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دیتی تھی، تو جس جگہ میں منہ رکھ کر کے پیتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ منہ رکھ کر کے پیتے تھے، اور اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ میں پانی پیتی برتن سے اور اپنا منہ رکھ کر کے جس جگہ پیتی تھی اسی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا منہ رکھ کر کے پیتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر مشرک کسی پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی نجس ناپاک نہیں ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ انسان کا پیشاب پاخانہ یہ بھی نجس ہوتا ہے۔ انسان کا پیشاب پاخانہ میں پہلے سے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے جوتے سے گندگی پہ سے گزر جائے تو اس کی طہارت یہ ہے کہ اس جوتے کو زمین سے رگڑ کر کے پاک کر دے۔ ایسے یہ وہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک بدبو آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، تو اللہ جب وہ فارغ ہو گیا پیشاب سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر کے پانی لاؤ اور پانی لا کر کے اس کے پیشاب کی جگہ پہ ڈال دو۔ اسی طرح نجاست میں سے مزی اور وضی ہے، اس سب کا ذکر ہو چکا پہلے۔ مزی میں بتایا تھا کہ جو ہنسی مذاق کے وقت یا بیوی سے ہم بستری وغیرہ کے بارے میں سوچتے وقت جو آدمی کے شرمگاہ سے نکلے اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر جسم پہ لگا ہوا تو اس کو دھلا جائے گا، کپڑے پہ لگا ہوا تو اس پہ چھینٹے مار دیے جائیں گے، وہ تو کرنا ضروری نہیں۔ ایسے ہی وضی کے بارے میں بتایا تھا، پیشاب کے بعد جو قطرہ جو نکلتے ہیں گاڑھے قطرے، اس کو وضی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر جسم پہ لگا ہوا تو دھل دیا جائے گا، اور کپڑے پہ لگا ہوا تو کپڑے کو بھی دھلا جائے گا، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ ایسے منی کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نہیں، غسل واجب نہیں، وضو صرف وضی منی کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ منی پاک ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ منی ناپاک ہے۔ لیکن اس کے طہارت کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر منی گیلی ہے، کپڑے پہ لگی ہوئی ہے تو اس کو دھلنا ضروری ہے، لیکن اگر خشک لگی ہوئی ہے تو اس کو خروج دینا کافی ہے، اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ قے کے بارے میں اگر قے معمولی قے ہے اور اس میں کوئی زیادہ بدلاؤ نہیں آیا ہے، اس میں بو وغیرہ نہیں نکل رہی ہے تو قے پاک ہے، لیکن اگر بہت زیادہ بدلاؤ ہوا ہے، بدبو ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، تو وہ بھی نجس ہے، قے بھی نجس ہے۔ جمہور کا یہی مطلب کہ قے بھی نجس ہے۔ پورے کتاب طہارت کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ طہارت کا کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی سے آدمی کا جسم، کپڑا اور زمین یہ پاک ہوتی ہے پانی سے۔ دباغت سے کیا چیز پاک ہوتی ہے بتایا ہوں میں؟ دباغت سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے، دباغت سے یہ چمڑا پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد مٹی اور پانی سے کون سی چیز پاک ہوتی ہے؟
यानी पानी भी धुलें और मिट्टी लगा के धुलें, उससे क्या चीज़ साफ होता है? हाँ, ऐसा बर्तन जिसमें कुत्ता मुँह डाल दे तो उसके लिए है कि पानी से भी धुलो और मिट्टी लगा के धुलो। नहीं, पानी 7 बार है, एक बार चाहे शुरू में चाहे आखिर में मिट्टी लगाना है, आपको मिट्टी लगा के धुलना है। उसके हो जाएगा वो उसी की जगह में होगा, साबुन की जगह सरफ की जगह में। हाँ, और मैं पाक जमीन पे चलना ये किस चीज़ के लिए पाकी का जरिया है? हाँ, पाक जमीन से चलना, गुजरना। हाँ, कपड़े के दामन के लिए है कि कपड़े का दामन अगर पाक चीज मतलब गंदगी से भी गुजर, गंदे जमीन से भी गुजर रहे हैं, पाक जमीन से भी गुजर रहे हैं, तो पाक जमीन से गुजरना ही उसके लिए काफी, उससे धुलने की जरूरत नहीं है। जमीन पे रगड़ना ये किस चीज के लिए जरूरी है? ये जूते चप्पल में अगर गंदगी लगी हो तो उसके लिए काफी है। पानी लगा करके खूब खुरच करके और मल करके धुलना ये ऐसे कपड़े के लिए जिसमें हैज का खून लगा हुआ हो। ऐसे कपड़े में हैज का खून लगा हो तो उसकी हुक्म यह है कि पानी लगा कर थोड़ा सा रगड़ करके और मल करके उसको धुलें। पानी छिड़कना, पानी छिड़कने से किस चीज मतलब पाकी होती है? हाँ, मर्जी की। और बताया नहीं नहीं हाँ नहीं, वही तो मर्जी का है, वो तो मर्जी हो गया। उसको पूरा है जो छोटा बच्चा जो गजा ना खाता हो, दाना ना खाता हो, उसका पेशाब मर्जी, और ऐसे छोटे बच्चे का पेशाब कि जो खाना ना खाता हो। हाँ, ऐसे ही हवा से या सूरज से अगर खुश्क हो जाए तो वो भी पाकी का जरिया है। तो उसके लिए ये है तो ऐसी जगह जहाँ पे कुत्ते वगैरह आते जाते हों, पेशाब वगैरह करते हों, तो वो अगर सूरज से खुश्क हो जाता है, हवा से खुश्क हो जाता है, तो पानी डालने की जरूरत नहीं है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे ज़माने में मस्जिद में कुत्ते आया जाया करते थे और पेशाब करते थे, उस पर हम पानी नहीं डालते थे। तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे कुत्ते, जैसे आपके आंगन वगैरह में कुत्ते आ जा रहे हैं, पेशाब भी कभी कर रहे हैं, तो उससे धुलने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी चीज़ पे कोई गंदगी, शीशे पे गंदगी लगी है या लोहे पे गंदगी लगी है, तो आप खाली उसको पोंछ दें, उसकी तहारत हो जाएगी। खुरचने के बारे में है कि मनी अगर लगी हुई है, खुश्क हो गई है, तो उसकी तहारत हो जाएगी। मनी है, खुश्क हो गई है, आप उसको खुरच दें, खा उसका असर कुछ बाकी हो तो उसकी तहारत हो जाएगी। आप बोले कि मस्जिद के अंदर कोई पेशाब कर दिया, उसको पानी डाल दिया गया और बदबू कहाँ? बदबू का। हाँ, तो उस जमाने में पक्की मस्जिद नहीं थी, जमीन थी, वो पानी खींच लेती थी। ताकि वो तो जज़ब हो जाती है, खींच जज़ब हो जाती है। आजकल तो पूरे पक्की है। हाँ, तो डाल देंगे, चला जाएगा, क्या उसको मार देंगे, उससे वैसे बदबू जाती नहीं होती है। और पहले तो बहुत सुविधा हो गया है, बच्चों का देहाती जिसको मतलब बाहर रहता है, नहीं पता है वगैरह। हाँ, पहले जमाने में होता था कि वो हमेशा बाहर रहते थे, जंगलों में अभी भी रहते हैं। हाँ, तो वही बाहर रहते थे, वो अजीब से उनका चेहरा मतलब रहता था, वो तहजीब तंबाकू भी नहीं मालूम होती। शेख वो बता दें जरा, वो गाय का गोबर जो घर पे गाय होती है, अगर हम पाक करते हैं और गाय का गोबर वगैरह उठा के रख दिए तो फिर उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। मैं बताएं उसका लीड और लगा हाँ उसका बताएं, उसका पेशाब बहाना जो है। हाँ, तो उसका और धोबी के यहाँ गधे के लिए जो कपड़ा धुलाता है वो ना पाक है ना? अब वो धुल देता है पानी से, बाद में साफ हो जाता है वो। और खाली उसको लपेट करके खाली आपको दे दे जरूर उसको बाकायदा धुल करके पानी से जूठे के बारे में है कि वो पाक है। बिल्ली का जूठे नंबर 8 को अल्लाह के हुक्म है कि इन
मिनट तवाफीन अलैकुम, ये तुम्हारे पास हमेशा चक्कर लगाने वाले में से है, तो उसका जूठा वगैरह साफ है बिजली का। इसी तरह उसका बर्तन भी है, वो भी पाक है, जिस बर्तन में वो धूल वगैरह थी, हाँ हाँ पाक है, हाँ पाक। गोबर में जो खाना वे और ये तो खाना जल गया उसका। गीला करके उसमें लगा करके रखो। हाँ कुत्ते के लिए 3 वजह से उसको पाल सकते हैं। अगर 3 वजह से नहीं पालेंगे तो आपके इसमें से नेकियों में से कटता रहेगा, नेकी आपकी कट जाएगी। 3 वजह, एक तो ये है कि आप शिकार के लिए उसको पालें, आपको शिकार का शौक है तो मुझे शिकार करते हैं तो उसको आप सिखाए हुए हैं बिस्मिल्लाह कह करके कुत्ता आप छोड़ रहे हैं, और वो कुत्ता जा करके और किसी शिकार को काट करके मार भी डाले तो आपके लिए हलाल होगा, बशर्ते कि वो खुद न खाए। गया कुत्ता और पकड़ के उसको मार दिया, हाँ कोई जानवर को जाके पकड़ा, हिरण को पकड़ा और उसको मार दिया, तो अगर आपने बिस्मिल्लाह कहकर उसको छोड़ा है और उस कुत्ते ने कुछ भी नहीं खाया, खाली आपके लिए मार दिया, छोड़े भी आपके लिए, अपने मुंह से तो मारेगा वो दांत। हाँ मुँह से मारेगा। तो यही इल्म का, यही इसकी बरकत यही है कि वही कुत्ता जो है कि जो मुंह डालने से उसके आपको 7 बार पानी धुलना है, बर्तन धुलना है, अगर आप उसको सिखा दिए, इल्म दे दिए उसको और बिस्मिल्लाह कहकर आप छोड़े तो उसने ज़बा आपको मार भी दिया किसी जानवर को तो आप खा सकते हैं, ये इल्म की बरकत है। दूसरा ये है कि आप अपने घर की हिफाजत के लिए रखें, घर की हिफाजत के लिए, बाहर से अपने घर में रखें, तो घर की हिफाजत के लिए रखें, वो मतलब कि चोर वगैरह आए तो आपको खबर कर दे तो करके। तीसरा है कि आप अपनी खेती की हिफाजत के लिए, जानवर की हिफाजत के लिए रखें। ये 3 ज़रूरतों के साथ आप रख सकते हैं। अगर इसके अलावा आप शौक के लिए रख रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए रख रहे हैं, तो आपके घर में फरिश्ते नहीं दाखिल होंगे और आपकी नेकियों में से कमी होती जाएगी। फोटो और फरिश्ते 2 चीजें। हाँ फिर सब बताते हैं कि उसको छूने से बदन नापाक हो जाता है। किसके उसको नहीं, इसके सही दलील कोई नहीं, इसके बारे में नहीं दलील। उसका चमड़ा जो है मतलब उसका बाल या संदेश से नहीं। तो पानी की कितनी मिकदार होनी चाहिए जो पास हो सकती है, नहीं होनी चाहिए, आपने बताया मैं बताया नहीं कि ये हनाफ का मसलक है। ये सही मसलक मुहक्किकीन उलमा का मसलक ये है कि अगर पानी चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा, अगर नजाकत उसमें पड़ गई है, उसका रंग बू मज़ा नहीं बदला है तो पानी पाक होगा। अलबत्ता उसको आप आदात में नहीं इस्तेमाल कर सकते, खाने पीने में नहीं इस्तेमाल कर सकते, वज़ू वगैरह में इस्तेमाल कर सकते।